السلام علیکم ناظرین کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل خطہ چناب کس کشتواڑ ضلع مز آز دوپہرن تمہ سات ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان جڑپ سپزم یل فورسز اہلکار جنگلی علاقہ گشت کران ون منڈال سنگھ پورہ کشتواڑس مز آز دوپہرن ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان گولین ہند تبادلہ سپدمت یل ات فوج CRPF تو SOG اہلکار گشت کران دشوی دریو طرف یہ لکٹن ہتھیارن سان بڑین ہتھیارن ہند استعمال عمل مز ان تب ات اند پک علاقن مز خوف لوکن مز خوف دہشت پید سپدمت یل زن آخری اطلاع واتنس تام علاقس مز گولین ہند تبادلہ وقفہ جاری اس ملک چن مختلف ریاستن مز یہ پتمو کینچو ریتو پہ لگاتار قشر تاجر تنگ طلب کرنے تو یمو لوکو طرف جموں کشمیر سرکارس منگ تہ کرنا آئی ہماچل اتراکھنڈ ہریانہ تو دویمن ریاستن مز کام کرن والن قشرن لوکن تو طالب علمن ہز حفاظت یقینی بنانے سوال گھن سنجیدہ قدم تلن ین تت بیٚیہِ اکہ پھر ہماچل تو ہریانہ پہ کی ویڈیو برہ کن آمت یم زن سوشل میڈیا پہ سٹھے مقبول سپدمت ویڈیون مز موجود شمالی کشیر سے تعلق تھاون ول یم نوجوان یہ ان ژور زیننے باپت یمن ریاستن مز وات تاہم کینچو شرپسند لوکو طرف تم تنگ کرنے یم سۭتۍ تم ذہنی کوفتک شکار سپدمت یہ کت باون لائق یہ یمن لوکن ہز حفاظت یقینی بناون جموں کشمیر ہندس وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سز اخ ذمہ داری تاہم عمر عبداللہ پن کی ساتھی ہیت ممبئی مز سیاحتس پوچھر دنس مز مصروف تو ومید فرصت ملنے پتہ کرن تم یمن واقعن ہز مذمت تو امہ حوالہ سپدن سنجیدہ ہندوستان میں رہے گا ہندوستان کہاں تو جے شری رام بول پھر آپ مجھے بولو گے جے شری رام بولو کیوں بولوں میں کیوں نہیں بول سکتا تو اپنا نا کیوں نہیں دھرم کہاں تھا یار میں آپ کو بولوں گا کلمہ پڑھا پڑھو گے کلمہ ہم سارے کام کریں گے جو ہم یہ کام کریں گے ٹھیک ہے جب ہم کام ہی نہیں کر رہے ہمیں پڑھے کر رہے ہم کس کو بول لیں گے بھارت کی جے بول سکتے ہیں کیوں نہیں بولیں گے بھارت کی جے بولیں گے ماتا نہیں بول بھارت کی ہم بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے ایک تو ہوتا ہے دھرم کی بات چھوڑ دے ایک تو ہوتا ہے بھارت ماتا کی جے بول دے بس سنو بھارت ماتا کی جے بول دے لوگ وہاں پہ جو پتھر بازی کرتے تھے اور نعرے لگاتے تھے نا پاکستان کے پیٹ میں تو آپ کی بہنیں اور آپ کی بیٹیاں ایسے بولتی تھی پاکستان جائیں گی پیٹ میں بچہ لائیں گی بولتی تھی نا دوستو یہ ایک اور آج پھر کشمیری آ گیا کیا نام ہے بھائی تیرا ایوب کون سی جگہ کا رہنے والا ہنڈواڑہ کا تو نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری آز جمس من ذرائع ابلاغ ست کت کران وونمت پاکستان طرف پتمو کئیو دہلیو پہ جموں کشیر ہند ماحول خراب کرنے کوشش کرنے تاہم فوج طرف پاکستانس معقول جواب دن دیکھیے جہاں تک تعلق ہے پاکستان آج سے نہیں بلکہ جب سے دیش آزاد ہوا ہے جموں کشمیر اور ہندوستان کو آزادی ملی ہے تب سے ہی پاکستان نے ہمیشہ کوششیں کی آج 36 سال کی ملٹنسی ہو گئی اور 75 سال میں قوالیوں سے لے کے پھر یدھ بھی ہوئی جنگیں بھی ہوئی ہمیشہ پاکستان نے کوشش کی ہندوستان کو کمزور کرنے کے لیے جموں کشمیر کو کمزور کرنے کے لیے لیکن ہندوستان کی فوجیں اتنی مضبوط ہیں اتنی الرٹ ہیں کہ ہمیشہ پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا اور پاکستان نے ہمیشہ اس کا نقصان پایا اور آج دیکھیں پاکستان یہی چیزیں کر کر کے کس کگار پہ پہنچ گیا ہے لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو شرم نہیں لیکن پھر بھی ہمارے جموں کشمیر کے لوگ اور ہندوستان کے لوگ بڑا مضبوط ہیں اور ہمارا بھائی چارہ جو جموں کشمیر کا اور ہندوستان کا بھائی چارہ ہے یا کسی بھی قوم سے یا کسی بھی مذہب سے ہم لوگ ہیں جب دیش پہ بات آتی ہے ہم سارے ایک مٹھ ہو کے ایک جٹ ہو کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس لیے پاکستان ڈرون بھیجے یا جو بھی بھیجے ہماری فوجیں الرٹ ہیں اس کا جواب دیں گے اور پاکستان کبھی بھی اپنے اس ایسے جموں کشمیر نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری ریاستی درجہ بحال کرنے حوالہ کت کران وونمت یدوے امیک وعدہ دنوں آمت تاہم آز تام یہ وعدہ پورہ کرنا آمت یم سۭتۍ جموں کشمیر ہندین لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان
वो भैया असेंबली के हम तो अभी आपके सामने कह के जा रहे हैं कि ये बीजेपी का वादा था। उन्होंने कहा था जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम हालात ठीक हो जाएंगे, हम स्टेट को बहाल करेंगे, स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अपना वो वादा निभाएगी और जम्मू कश्मीर को, जो कि एक स्टेट थी, उसको स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल होगा, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मसले और मसाइल सही मायने में हल हो सकेंगे। क्योंकि एक बात आपको समझनी चाहिए कि कई लोग वजीर खेल सतीश शर्मान ये आज उधमपुरस मज मुनक़द क्रिकेट टूर्नामेंट तकरीब मज शिरकत कर तत तिमो वोनमुत भारतीय जनता पार्टी तरफ जम्मू कश्मीर मज लोग गुमराह करने कोशिश करने तो लूकन पज़ अमि नश बाखबर रोजुन। ये जन तिमो वोन उमर अब्दुल्ला सज सरबराही मज वनकन जम्मू कश्मीर तरक्की हज वत पे ब्रो पकान तो यह वजह भारतीय जनता पार्टी तरफ ये मसले वतलावन यम सत लूक तजब्जुबक शिकार सपदमेत। मिट्टी को आप स्टेट बना दो, ये मजाक हो रहा है। डॉक्टर करण सिंह जी ने भी, महाराजा साहब ने भी कल बोला ये मजाक है, ये अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं कल मजाक में मैंने बोला ये लोग जो स्टेट मांग रहे हैं, अब तो हमने बनने नहीं देनी, हमें अपनी पुरानी स्टेट चाहिए। हम तो डीएसपी से कांस्टेबल बने, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ऐसा हुआ है। स्टेटहुड के लिए एनसी क्या कर रही है? स्टेटहुड के लिए आवाज तो एनसी की भी बुलंद नहीं है यार। मैं हर महीने दिल्ली जाना है, मेरे हर भाषण में ये होता है। मैं तो 1 लाख नौजवान कल सड़कों पे खड़ा कर। आउटकम क्या है सर? आउटकम इतनी जल्दी नहीं आता भैया। 11 साल की बर्बादियां हैं, 11 साल की करप्शन है, 11 साल आपको आदत होगी है बंधुआ मजदूर बनने के लिए। सर किसी एमएलए बीजेपी के विधायक में हिम्मत नहीं है एलजी के सामने, इनकी पतलून गीली हो जाती है। और अमित शाह तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए जो काम कर रहे हैं मीडिया को मैं बोलूंगा यूर फोर्थ पिलर। सर रिसेंटली आप पड़ता है मीडिया को, आप मीडिया से हो, पार्टी कौन सी? 90% तो गोदी मीडिया हो आप, हो नहीं आप। ये दुकानें हैं तो मैं कुछ और अंदाज का बंदा हूँ। मीडिया, अच्छा मीडिया की जरूरत है। अखबारें हमारे खिलाफ लिखती आई हैं, 10 साल बाद ये अखबारें ड्राइंग रूम में टंगी होंगी। उसी तरह देयर इज डायर नीड टू स्ट्रीमलाइन द मीडिया। जो सी घर हाली नहीं पूछती वो मीडिया पर्सन बनी जाता। अच्छे मीडिया की जरूरत है आपको। बड़ो रिसेंटली आप दिल्ली में गए थे, वहाँ पे आप काफी सीनियर लोगों से मिले, बीजेपी के थे, दूसरी पार्टी के थे, सबसे मिले। आप क्या कुछ लग करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए? पहले 1 लाख नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां चाहिए। 2 IT पार्क मंजूर उमरदुल्ला साहब की क़यादत में हम करके आए हैं। 1 IT पार्क का मतलब है 500 करोड़ में कम से कम 25,000 लोगों को हम रोजगार देंगे। एक कश्मीर में, एक जम्मू में। 2 ATS मैंने खोल दिए हैं। आने वाले दिनों में 900 करोड़ का एक हम प्रोजेक्ट लाए हैं, जिसमें आपकी जो भी वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर हम स्टीमर्स और क्रूज सर्विसेज चला रहे हैं। 65 किलोमीटर हम कश्मीर झेलम में हम क्रूज चला रहे हैं। रंजीत सागर, कठुआ, मानसर, सुरुईसर, रियासी, अखनूर, यहाँ सब हम स्टीमर सर्विसेज चला रहे हैं, which will promote the tourism as well as it will generate wonderful employment avenues. बहुत से पार्टी के जो लोग हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि उमर साहब काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके लीडर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? लोगों का टाइम पास है या लोगों को गर्मा करने की कोशिश कर रहे हैं? There can never be 2 power centers. घर च मम्मी डैडी नहीं ना बना राती फुल खेलना। There are 2 power centers. आपने जब कड़ा बांटा था कुछ लोगों ने, जब 370 टूटा, जब आपकी रियासत छीन ली गई, इन बेवकूफ़ों ने ढोल बजाए थे, वो कड़ा खाया था, मैं भी उनमें था। लेकिन अब दोबारा स्टेट मिलेगी, ये फिर से ढोल बजाएंगे। दे आर कंफ्यूजिंग यू बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू कन्विंस यू। डॉलर इज ऑल टाइम हाई, योर पेट्रोल डीजल इज ऑल टाइम हाई, देयर इज पार्टी, देयर इज फॉरेन पॉलिसी पैरालिसिस। जैसे ब्यूरोक्रेट, ये जो अफसरशाही मजबूत हुई है बीजेपी की राज में, ये ले डूबेगी सरकार। बदकिस्मती है कांग्रेस भी काखड़ी ना बचेगा। इसलिए अच्छे लोगों की जरूरत है, मेरी तरह इंडिपेंडेंट लोग, उमरदुल्ला जैसे लोग। अनंतनाग किस बिजबेड़ इलाके में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रोग्राम साइंस करना आमुत, यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो इन वाले इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस में पार्टी मजीद मजबूत बनाने हवाले संजीदा सपदन, युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी सहित वाबस्त सपदन। मैं आप लोगों का और इन लोगों का, आपने देखे कितने भारी तादाद में यहाँ पे लोग आए थे, नौजवान बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें आई थी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक कि आपने हुकूमत की बात की, हुकूमत ने जो भी वादे हमारे साथ किए थे, कश्मीरियों के साथ किए थे, जिस पे उन्होंने वोट लिया था, चाहे वो 1 लाख नौकरी की बात हो, चाहे वो
12 सिलेंडर की बात हो, चाहे वो फ्री बिजली की बात हो, चाहे वो राशन बढ़ाने की बात हो। मेरे कहने का गरज है कि कोई भी एक भी तिनका जो उन्होंने वादे किए थे उसमें से 1% भी, आधा परसेंट भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और जिनकी हुकूमत है यहाँ पे, सीएम उमर अब्दुल्ला साहब है, ये जवाब तो वो देगा ना क्यों हो रही है, क्या कैसे हो रही है। बीजेपी की तो यहाँ हुकूमत नहीं है, हम तो अपोजिशन का रोल यहाँ अदा कर रहे हैं, इसका जवाब हुकूमत से मांगो आप। बीजेपी ने एक नैरेटिव जो है वो उठाया है कि सेपरेट। कुछ नहीं है, हमारे जितने भी सीनियर लीडर है, पार्टी के जिम्मेदार है, उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि वो किसी का जाती बयान होगा। पार्टी बीजेपी जम्मू श्रीनगर में आज वक्फ बोर्ड तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी तो दोमो जिम्मेदारों अलाव वक्फ बोर्डस तहत इन वाल स्कूलन में ज़ेर तलीम तलब इलमो तो वस्तादों शिरकत कर। अत मौके पे ये 10वीं तो 12वीं जमात हंदन सालाना इम्तहान में बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाल तलब इलमन हज हौसला अफजाई कर आई। तब यमो तलब इलमो तरफ खुशी हंद इजहार करान वन आमुत जे हौसला अफजाई कर तिमन सठा खुशी सपजम तो तिहज मेहनत रोज ब्रोह कुन जारी। तोड़ कि सामान्य इंसान हो क्या दर लम्हात। सबसे पहले मेरा नाम फहद बिन फेरोज़ है और मैं सुल्तान आज़म हायर सेकेंडरी से पढ़ा हूँ। और मेरी स्कूल में पोजीशन फर्स्ट रही है, 479 में स्कोर किया है 12th ग्रेड में। और सबसे पहले अप्रिशिएट जो हमें करना चाहिए अपने टीचर्स को ही करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और हमारे स्कूल के टीचर्स थे कमिश्नर फारूक सर, हिलाल सर और बाकी सारे टीचर्स हैं, उन्होंने हमें खूब सपोर्ट किया है। और जो पढ़ाया उन लोगों ने ही पढ़ाया है, तो अपने से पहले हम उन्हीं को रखते हैं। हमें जैसे मैम ने भी बोला कि हमें खुद को इंटैक्ट रखना चाहिए अपने रूट से। तो ये मोरालिटी में सबसे पहले इस्लाम ही आता है, और जो इस्लामिक एजुकेशन मिलती है हमारे स्कूल में, वक्त स्कूल्स में स्पेशली, वो बहुत अच्छी मिलती है और टीचर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा हिलाल है और मैं सुल्तान लारफीन स्कूल से पढ़ती हूँ और मैं सेकंड टॉपर हूँ अपने स्कूल की। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ दरक्षा मैम की और हमारे टीचर्स की, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। फ़ारूक सर, शहज़ीब मैम, इन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। और हमारे स्कूल के टीचर्स ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ है एजुकेशन में, और जिससे मतलब हमें बहुत मोटिवेट हुए हैं पढ़ने के लिए। और हमारे टीचर्स ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। मैं इस्लामिक हनफिया अनंतनाग से हूँ और मेरे 497 मार्क्स आए आउट ऑफ 500। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव थे, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से गाइड किया। हमारे प्रिंसिपल सर और भी टीचर्स हैं हमारे। और करंटली मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह उसमें भी होपफुल हूँ कि उसमें भी सिलेक्शन हो जाए। और हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह मॉरल एजुकेशन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे लिए अप्रिसिएशन मतलब ऐसे हमें यहाँ बुलाया गया, हमारे लिए अप्रिसिएशन हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयदा नास्ती है, मैं हनफिया अनंतनाग से हूँ एंड आई स्कोर्ड 499 आउट ऑफ 500 इन माय 12th बोर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, उनकी वजह से ही मैं ये इतना अच्छा स्कोर कर पाई। और उनके साथ साथ मैं अपने टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ देम वी वर एबल टू अचीव सो मच, बिकॉज ऑफ देयर नोट्स, बिकॉज ऑफ देयर टीचिंग, नॉट ओनली द teachings which were written in the book but also the Islamic teachings, the moral teachings, इखलाक भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सिखाए and I'm so grateful for all of them. बहुत ज़्यादा खुशी मिली जो मिस दरख्शान ने हमें इतना सब कुछ हमारे लिए किया एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज इससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिलता है, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आगे जाके भी हम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा निसार है एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सुल्तान अल आरिफीन स्कूल एंड आई हैव स्कोर्ड 498 आउट ऑफ 500 इन recent class 10th exams and I have got third position in कश्मीर। ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे यहाँ बुलाया गया और इन्होंने हमें यहाँ ऑनर किया। और आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर्स, क्योंकि
एक बच्चा खुद कुछ नहीं कर सकता है, टीचर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो हमेशा यपर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दर्रक्षा इंद्राबी अमे हवाले कत करान वोनमुत ज ये वक्फ असासन हज रश रावट यकीनी बनाने हवाले संजीद कदम तुलने आमत तत तलीम कुन खास जोन दिन आमुत युत जन वक्फस तहत स्कूलन में ज़ेर तलीम तलब इल्मन मयारी तलीम फराहम करनस मज ते आसानी सपदे। पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बच्चों ने अच्छी कारकर्दगी की, और सारे स्कूल्स, ये नहीं कि जो हमारे 1 या 2 स्कूल, जितने भी हमारे स्कूल हैं, हाई स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स, उनमें तमाम बच्चों ने, आपने खुद देखा, सारा आप यहाँ पे रहे जब से फंक्शन शुरू हो गया, तो सबों ने पोजीशन हासिल की है। और इससे यही लगता है कि जो पिछले 3 सालों से पहले आप जब हमारी कारकर्दगी देखते तो शायद वो बहुत ही मायूसकुन थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये सेक्टर भी हमारा शाइन हो गया, और आज जिन बच्चों ने यहाँ पे, जिनको हमने फेलिसिटेट किया, उसके अलावा भी हमने सारी ही डिस्टिंक्शंस ली है। ये नहीं कि बस सिर्फ 2-3 पोजीशंस ली, सारे ही हमारे बच्चे डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं, और हमारे बच्चों ने ऐसी परसेंटेज लाई है जो काबिल रशक है। इसमें हमारे उस्तादों का जो मयार रहा, हमारे जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने इसमें जान डाली। पहले भी यही टीचर्स थे, हमने बदले तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे इंसान गाफिल रहता है। हम जब आए तो हमारे स्कूल्स घाटे में चल रहे थे, बहुत ही लॉस में था, हमारा सारा पैसा ही वैसे स्कूलों में जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश हमने की उस लॉस से हम, ये नहीं है कि हमारी ही बात आखिरी है और हमने जो किया वही आखिरी है। आखिरी कुछ नहीं होता है, हर दौर में और हर वक्त में बहुत ज़रूरत होती है, बशर्ते कि आपकी नैतिक खुलूस हो और आप जिस डिपार्टमेंट को चला रहे हो उस डिपार्टमेंट को आप नियति से चलाएं और लोगों के बहबूदी के लिए, क्योंकि जो हमारे ज़िम्मे हमारा डिपार्टमेंट है, इस JDU तरफ वर्मलिस मज प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज UT सदर GM शाहीन तो दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत ज तम गसन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने हवाले काम कर युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी सत वबस्त सपदन। है और हमारे वर्कर्स तैयार है माशाल्लाह इन नॉर्थ कश्मीर, और ULB में हमारी पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, वो हमारी कोशिश है। देखिए ना अब, बिकॉज बर्फबारी ना होना जम्मू कश्मीर के अंदर एक अनफॉर्चुनेट, बिकॉज हमारी पूरी जो फसल है, आपके जो सेब की बागात है, बस सब टूरिज्म सब इसके ऊपर डिपेंड है, और माशाल्लाह आई बिलीव दैट आने वाले दिनों में बर्फबारी होनी चाहिए, होगी भी, और जम्मू कश्मीर जो है इंशाल्लाह सही रहेगा सब चीज़। नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या नाराजगी है? मेरी नाराजगी नहीं है। मैं देखिए एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ा आप लोगों ने UT में, और उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बातें की कि असरों के मैं चढ़ूंगा, चांद तारे उतार के लाऊंगा, क्या कहते हैं, और जब आप जानते थे कि आप UT के चीफ मिनिस्टर हो, आपके हाथ में नहीं है, तो तब लोग झूठ क्यों बोला? और चाहिए उनको कि अगर थोड़ी सी भी शर्म हो, लेट दे रिजाइन एज ए प्रोटेस्ट कि आपके पास स्टेटहुड नहीं है, एज ए रिजाइन प्रोटेस्ट, लेट दे रिजाइन। से नहीं करेंगे, कुर्सी मिली है, 3 लाख रुपए तनख्वाह है, गाड़ियां है, प्रोटोकॉल मिला है, इसको लेकर बिल्कुल नहीं करेंगे। इस्तीफा तो ये लोग नहीं, अपने लिए गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये लोगों के लिए कहाँ है? लोगों के लिए कहीं पर है क्या? आपने इन डेलीवेटर्स की बात की, इन्होंने SPOs की बात की, इन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, कौन सा काम किया? तो नाजरीन खबरनामा तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, मैं दी इजाज़त, खुदा सवाल।